Have you ever noticed that you attract same kind of people when it comes to romantic relationship? And now you are like, ki, how to break that cycle? Let me assure you that nothing is wrong with you, and you are not alone in this. So in this particular video, I will help you understand the why part of it. Why do you attract the same kind of people when it comes to romantic relationships? And I'll also give you certain strategies to which you can, be mindful of when you are seeking a romantic relationship in future. So let's get into it. So let me make this topic a little more easier for you by using a case here. This is one of my client used to come to me for around about 1 year and so for therapy. So this client came to me, she had a relationship related issue, and then she wanted an advice. Like, people think that that maybe counseling is all about advice, but it is not. They get to know it when they come to therapy. So she wanted to seek help and know if maybe she's overthinking about things. The first line I still remembered, her saying that I think the most of the decisions that are being taken in this particular relationship in majority by her boyfriend. And I was like, okay, but what makes you say that? She was like, मुझे ऐसा लगता है कि सारे डिसीजंस वही लेते हैं. एंड जब भी हम फॉर एग्जांपल दे हैड दिस रूटीन कि रात को दोनों इकट्ठे मूवीज देखेंगे, एंड जब भी मूवी देखनी होती थी तो वो डिसीजन नहीं, वो ज्यादा होता था कि हर बॉयफ्रेंड इज टेलिंग हर कि ओके हम ये मूवी देखने वाले हैं. एंड शी वाज लाइक दैट दिस did not stop just here. He also wanted to know कि मैं किनके साथ hang out कर रही हूँ, क्या पहन रही हूँ. And to her, while she was saying this, she was like कि मुझे अब ऐसा लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि मतलब मेरा कोई फ्रेंड हो या फिर मैं कभी बाहर जाऊं भी. And then while she was speaking, she realized one thing and she also said it out loud कि मुझे realize हो रहा है बोलते बोलते कि मुझे ऐसा लगता है कि my boyfriend is controlling. He wants to control each and every decision जो भी इस relationship में लिया जाता है. And then as a therapist, I wanted to, explore more here. Okay, not just related to this particular relationship, but also her previous relationship अगर वो थी पहले. तो I asked her about कि if you were in previous relationships and how they were, ठीक है, कौन से क्या mutual pattern आपको सभी relationship में दिख रहा है. And she was like, okay, इससे पहले मैं 2 relationship में थी. She took her own, time to think about कि okay, पिछले relationship में क्या pattern था जिसकी वजह से breakup हुआ था. And then after a moment she realized कि yes, most of her partners were controlling, and the same pattern she observed that she has been talking about in her current relationship. You're seeing कि ये चीज सिर्फ इस relationship में नहीं थी. There is this common thing that is happening in all of her relationship. उनके past के भी, उनके current के भी. Now you must be wondering, how is this even possible? ये कैसे हो सकता है? But let me tell you, ऐसे कैसे है? So for this, we'll have to go a little bit back. जैसे मैंने पहले बोला, this did not just start on the first date. See, from the moment that we are born, we are attached to our primary caregiver. Primary caregiver कोई भी ऐसा इंसान जो हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारे नीड्स को केटर करने के लिए वो इंसान वहाँ पे प्रेजेंट है प्राइमरीली. मे बी हमारी मम्मी हो सकती है, मे बी इट कैन बी आवर मदर, इट कैन बी आवर फादर, इट कैन बी एनी थर्ड पर्सन. So they are our primary caregivers. और हमारी जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं वो 6 month old जब हम होते हैं से लेकर 2 year old तक के बच्चे के बीच बीच में इसमें हमारी अटैचमेंट स्टाइल फॉर्म होती है. सो जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, फॉर एग्जाम्पल फॉर लव, फॉर फीलिंग सिक्योर, फॉर फीलिंग एनी काइंड ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी, ये सब एक्सपेक्टेशन जो है हमारी वो इस पीरियड में हमारी बन जाती है. नाउ व्हाट हैपन इज, अगर एक केयर गिवर is present there fully and is able to cater to our needs, is able to provide us that secure base. For example, if a child needs food, so क्या हमारे जो प्राइमरी केयर गिवर हैं, आर दे एबल टू फीड अस और नॉट? व्हेन वी वांट दैट लव एंड अफेक्शन, क्या हमारे प्राइमरी केयर गिवर वहाँ पे प्रेजेंट है हमें वो फील कराने के लिए या नहीं है? तो अगर इफ अ पेरेंट इज एबल टू बी प्रेजेंट फॉर देयर इन्फेंट उस टाइम के ड्यूरिंग कंसिस्टेंटली, तो दैट चाइल्ड इज गोइंग टू फॉर्म अ सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल. बट इफ they are not present, there is inconsistency in showing love, in showing security, तो वहाँ पे और तरीके की different attachment styles बन जाएंगे. As I was already talking about secure attachment style, so secure attachment style अगर इसको बात करें थोड़ा सा relatively, इसको मेरे को और बनाना हो, will be kind of a golden retriever energy. They are ऑल हैप्पी, ऑल जॉयफुल. ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके, जैसे मैंने पहले बताया कि उनके जो प्राइमरी केयर गिवर्स थे वो उनके लिए कंसिस्टेंटली प्रेजेंट थे. ठीक है, दे वर रिस्पॉन्सिव.
to their needs. And so as an adult, ये individuals जो हैं बहुत secure होते हैं when it comes to their friendships, when it comes to their relationship. They are very well aware of their needs. They are very attuned with their needs. They are able to also communicate it well, and they usually form very healthy kind of relationships where they are able to communicate everything that they want. And अगर उनको लगता है कि किसी ऐसे एनवायरमेंट में, किसी ऐसे रिलेशनशिप में उनकी नीड जो है वो दे आर नॉट बीइंग मेट, सो दे लीव दैट सिचुएशन विदाउट मेकिंग देमसेल्फ सफर. दे जस्ट लीव दैट सिचुएशन, लीव दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप. जो आइडियली होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको पता है कि कहीं पे आपकी नीड्स मेट नहीं हो रही हैं तो यू शुड जस्ट लीव दैट रिलेशनशिप. एंड सम पीपल रियली स्ट्रगल विद इट, राइट? सो वी विल कम ऑन टू दैट कि ऐसा क्यों होता है. कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, उनको पता है कि उनकी नीड्स बिल्कुल भी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मीट हो नहीं रही है, बट फिर भी उस रिलेशनशिप में है. दैट ऑल्सो इज रिलेटेड टू अटैचमेंट स्टाइल एंड वी आर गोइंग टू कम ऑन टू दैट. सो द नेक्स्ट अटैचमेंट स्टाइल हियर इज एंग्शियस एम्बिवेलेंट अटैचमेंट, राइट? दिस पर्सन, अगर मुझे एक इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाना हो तो आई विल से कि इन्होंने किसी को मैसेज किया और उस इंसान ने इनका मैसेज फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए नहीं देखा, तो दे विल कंसिस्टेंटली विल बी थिंकिंग अबाउट कि देखा क्यों नहीं, देखा क्यों नहीं, देखा क्यों नहीं. क्या ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है? क्या ये इंसान मुझसे गुस्सा है? क्या ये पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है? सो such kind of thinking will go on in this person. अब क्यों है? I'll tell you why. कि बचपन में इनको कभी भी consistent इनकी needs को cater नहीं किया गया. There were a lot of inconsistency. इनके caregivers भी इनको for example they'll feed this particular child. तो इनको हमेशा, इस बच्चे को हमेशा डर होता था कि अगली बार जब उन्हें भूख लगेगी तो क्या इनको फीड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. अब ये डर क्यों होता है? क्योंकि ऐसा बीच में हुआ होता है जब इनके केयर गिवर को प्रोटेक्टेड फील कराना था तब वो कहीं और ही बिजी थे. अभी कभी कभी बीच बीच में अगर केयर गिवर उनको कभी प्रोटेक्टेड फील कराता भी है तो तब भी वो ना हमेशा डरे डरे से रहते हैं कि क्या अगली बार ये होगा, अगली बार ये मेरे लिए प्रेजेंट रहेंगे, मेरे पेरेंट्स, मेरे प्राइमरी केयर गिवर्स. सो एज एन अडल्ट ये कैसे होता है ना, आई विल टेल यू. इफ they get into a toxic relationship, it's very difficult for them to get out of that relationship because they get overly dependent. ये बहुत clingy हो जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अब यही इंसान इनकी जो नीड्स को वो केटर कर रहा है. अगर मैंने इस इंसान को छोड़ दिया, चाहे वो टॉक्सिक इंडिविजुअल है, तो उन्हें लगेगा मेरा क्या होगा, मेरे नीड्स को कौन केटर करेगा. सो बहुत ज्यादा ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं ये बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी देखी होती है इनके पेरेंट्स में. और अगर ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो दूसरे इंसान के साथ ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं. उनको लगता है कि अब यही मेरे नीड्स को मीट करेगा. क्यों? क्योंकि उनकी बचपन में वो नीड्स को किसी ने पूरा नहीं किया. अब वो चाहते हैं कि ये इंसान पूरा करे, चाहे इंसान टॉक्सिक क्यों नहीं है. नाउ अवॉइडेंट डिसमिसिव आर समबडी, आपने सुना होगा ना कि आजकल पीपल घोस्ट वेरी इजीली व्हेन थिंग्स गेट वेरी इमोशनली ओवरवेलमिंग. तो एकदम से इस इंसान ने मुझे घोस्ट कर दिया जब हम रिलेशनशिप की पाथ पे जाने ही वाले थे, हम डेट से रिलेशनशिप में आने वाले थे, एंड दिस पर्सन स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू माई टेक्स्ट. अब वो होता क्यों? नाउ यू विल बी एबल टू शो दोज पीपल some kind of empathy. Because बचपन में क्या हुआ, जब इमोशनली अपने इमोशंस जब अपने पेरेंट्स को दिखाते थे, अपने प्राइमरी केयर गिवर्स को दिखाते थे, तो वो डिसमिसिव होते थे. That's why this is avoidant dismissive because their parents did not reciprocate to their emotions. जो उनकी नीड्स थी उस टाइम पे, जो इमोशंस में भी अगर रो रहे थे तो इनके मम्मी पापा ने ये नहीं किया कि हाँ चुप करा दिए इनको, या फिर देखा कि क्या हुआ जो उनको ट्रबल कर रहा है एज एन इन्फेंट, तो वो नहीं हुआ. तो उनकी कभी नीड्स को कभी रेसिप्रोकेट ही नहीं किया गया. तो बड़े होके इनको क्या लगा कि ठीक है, बचपन में मेरे साथ हुआ है कि जब मैं इमोशनल होती थी या होता था तो कोई भी मेरे को पूछने नहीं आता था कि क्या हुआ. तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं हाईली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी. आई विल बी हाईली इंडिपेंडेंट, इमोशनली बिल्कुल डिस्टेंट हो जाऊंगा कि मैं इन फ्यूचर में किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होंगी, तो कोई मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर पाएगा. क्योंकि बचपन में बहुत हर्ट हुई इस चीज की वजह से कि जब ये एक्सप्रेस करते थे तो कोई रेसिप्रोकेट नहीं करता था, उल्टा डिसमिस कर देते थे इनको. तो अब बड़े होके वो एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं. जब चीजें बहुत इमोशनली ओवरवेल्म हो जाती हैं, बहुत सारे इमोशंस उनको दिख रहे होते हैं कि अगले इंसान बहुत इमोशनल हो रहा है, तो पहले अपना को हटा लेते हैं. उनको लगता है कि वो थोड़े से इमोशंस दिखाने वाले हैं तो पहले ही हट जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो हर्ट ना हो दोबारा फिर से जैसे वो बचपन में हुए थे. डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल में होता क्या है? इट इज काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एंग्शियस एंड अवॉइडेंट. अब ऐसा क्यों होता है कि इनको, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन केस इज देयर वाज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा वेयर दे हैड टू अंडरगो अ रिगरस प्रोसेस वेयर दे वर नॉट एबल टू प्रोसेस देयर इमोशन. ऐसे काइंड ऑफ ट्रॉमा था. या फिर सेकेंडली कैन बी देयर प्राइमरी केयर गिवर्स दे वर ऑलवेज मेड टू फील डिसरिगार्डेड. जो भी वो चीजें करते थे उनको उनके बारे में बुरा फील कराया जाता था. तो दीज काइंड ऑफ पीपल, यस, एज एन अडल्ट दे वांट टू हैव रिलेशनशिप बट एट द सेम टाइम दे फियर दैट अगर मैंने खुद को इस सिचुएशन में डाल दिया
तो ऐसा ना हो कि अगला इंसान सेम चीज करे जो मेरे साथ बचपन में हुआ था, मुझे सेम डिसरिगार्डेड फील ना कराए, तो इसलिए दे जस्ट पुल देमसेल्फ बैक। तो देयर इज दिस पुश एंड पुल की डायनामिक चलती रहती है इनके दिमाग में। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा उन्होंने किसी को व्हाट्सएप पे, दे वांटेड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड दे वर लाइक ओके लव यू, एंड एज सून एज उनको पता लगा कि अगले इंसान का ब्लू टिक आ गया वहां पे, उन्होंने देख लिया वो मैसेज एंड दे आर ऑनलाइन एंड देन दे विल बी लाइक ओके जस्ट किडिंग, नेवर माइंड, लॉल, एनीथिंग। सो दे लाइक कि हाँ मुझे चाहिए ये चीज, तो वो कर नहीं पाते क्योंकि डर है उनके मन में। सो देयर इज दिस पुश एंड पुल inside them that is driving them to do this. It's not their fault, it's all about their upbringing. So जितने भी हमने अभी अटैचमेंट स्टाइल्स देखी हैं, एंग्शियस से लेके हमारे अवॉइडेंट से लेके हमारे डिसऑर्गेनाइज से लेके, ये सब चीजें क्यों होती हैं? बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग कैसी थी, हमारे आसपास का एनवायरमेंट कैसा था, हमें कैसा फील कराया जा रहा था एज एन इन्फेंट। सो कमिंग बैक टू द केस दैट वी वर डिस्कसिंग कि वो बार बार कंट्रोलिंग पार्टनर्स की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट हो रही थी। आफ्टर मेनी सेशंस we were exploring her childhood and I got to know that when she was born her mother passed away and her father was her primary caregiver, and according to her father was very emotionally distant and was very strict. So जो भी रूल घर का था वो वही बनाते थे, ठीक है। तो उनको लगा कि प्यार को हमेशा अर्न करना पड़ता है by following the rules. So she used to follow the rules and she used to get that love. वो condition हो गया दिमाग में बहुत ज़्यादा। Unconsciously she absorbed this belief system कि maybe love is equals to being controlled by the other person. So majority of our patterns are being formed in our childhood. जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारे environment में हो रहा होता है, हम उसी को as a definition समझ लेते हैं for attachment, for love. So that means we simply repeat what we learn when we were young. हम सेम चीज़ें रिपीट करते हैं, या फिर इस केस में दो चीज़ें हो सकती थी, या फिर वो खुद कंट्रोलिंग हो जाती। एंड द सेकेंड पार्ट इज शी इज समबडी हु इज बीइंग कंट्रोल्ड, and as she was conditioned to follow rules of her father and do things accordingly to seek his approval, she chose this path. And if you have realized कि आप भी same डेटिंग पैटर्न्स के बीच में, विशियस साइकिल के बीच में आप फंस रहे हो, एंड यू आर बीइंग अट्रैक्टेड टू सेम काइंड ऑफ पीपल एंड इट माइट बी रिलेटेड टू योर पास्ट, आई विल गिव यू सर्टेन स्ट्रैटेजीज व्हिच विल हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन, बिकॉज दीज सेम टेक्निक्स हेल्प्ड माय क्लाइंट out. The first of all is being mindful of your patterns. So what you can do is you can write about all of your relationship, write about it, then find common patterns कि क्या क्या कॉमन चीजें थी उसमें, कि हाँ अगर पहले रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, सेकंड में हुआ तो क्यों हुआ, अगर करंटली आप इस रिलेशनशिप से परेशान हो, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं तो किस चीज से परेशान हो, देन कंपेयर इट। इज द कंपैरिजन कमिंग टू द सेम कंक्लूजन, ठीक है? आर यू ऑल्सो मे बी अट्रैक्टेड टू अनअवेलेबल पार्टनर्स, सो इट कैन बी एनीथिंग, सो यू विल कम टू अ कंक्लूजन। अगर ऐसा है तो दैट इज द मेन थिंग, मे बी आपके कनेक्टेड है वो सेम चीज आपके पास से, ये तो पहले आपको पता लग गया। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी थॉट फीलिंग एक्शन की, ठीक है? तो when for example you are in a talking phase with a person, so ask yourself what thought came in when you got attracted to this person, और आपने एक्शन क्या लिया, कि एकदम से रिलेशनशिप में आ गया, पहले जानने की कोशिश की, और जो भी आपने एक्शन लिया है then ask yourself is this action going to help me in the longer run or am I falling into old patterns जो मेरे लिए unhealthy है। ask these two questions to yourself, this is going to help you a lot। जब आपको अवेयर करवाएगा, आपको आप माइंडफुल होंगे कि ये चीजें मेरे लिए ठीक है या नहीं है। और इस चीज में ही हमारी एक बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है इज एक्टिवली रिमाइंडिंग आवरसेल्फ ऑफ आवर अनहेल्दी पैटर्न्स। सो जर्नलिंग अबाउट आवर पैटर्न्स, कि हमारे पैटर्न्स क्या है जब व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। सो जर्नलिंग अबाउट इट कि हमारे पैटर्न्स क्या, किन चीजों के साथ हम अट्रैक्ट होते हैं और क्या चीजें मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। इसके बाद टेकिंग योर ओन टाइम व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, नॉट जस्ट रशिंग इनटू रिलेशनशिप जब अभी 1-2 दिन हुआ है जाने हुए किसी इंसान को और आपको है कि नहीं आई वांट टू रश इनटू रिलेशनशिप। डोंट डू दैट बिकॉज अगेन यू विल फॉल बैक टू योर ओल्ड पैटर्न्स। द अदर थिंग इज टू क्रिएट योर ओन नॉन नेगोशिएबल लिस्ट, ऐसी चीजें जो आप टॉलरेट नहीं करोगे अपने रोमांटिक पार्टनर में। इसको क्रिएट करने से व्हाट विल हेल्प यू हियर इज टू अवॉइड योर अनहेल्दी पैटर्न जो आपके हैं। अगर आप यू आर अट्रैक्टेड टू पीपल हु आर नॉट अवेलेबल, हु नीड फिक्सिंग, तो जब नॉन नेगोशिएबल लिस्ट आप बनाओगे कि ये चीजें तो मैं टॉलरेट ही नहीं करूँ, तो जब वो आप कर रहे हो तो यू आर डूइंग इट विद अ लॉजिकल ब्रेन, राइट? एंड डोंट जस्ट क्रिएट इट इन योर हेड, क्रिएट इट विद अ पेन एंड पेपर सो दैट whenever you are in a talking phase with an individual, you are also being aware of your non-negotiables, and also along with this communicate
these non-negotiable list with the person that you are interested in. ठीक है, आपको लगता है कि हाँ अब मैं थोड़े सीरियस डायरेक्शन में हम दोनों जा रहे हैं, we will name it as a relationship. So before naming it as a relationship, communicate that non-negotiable list with that person कि आप दोनों सेम पेज पे हो या नहीं हो. वो भी चीज ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके non-negotiable list, एंड आपको ये भी पता लग जाएगा कि what is their reaction to your list. ठीक है, are they getting defensive, are they getting all of a sudden very angry, reactive, whatever. उस चीज से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी. So communicating clearly, ठीक है, about each and everything is going to help you out have that clear mind and avoid your unhealthy patterns. See, breaking a dating pattern isn't easy. It requires a lot of self-awareness, inner work, and obviously a professional help as well. Because इस एक वीडियो को देखकर ऐसा नहीं है कि आप एकदम से पता लगा सकते हो कि पास्ट पैटर्न्स कहाँ से आ रहे हैं, आपका चाइल्डहुड कैसा था. ठीक है, अगर चाइल्ड ऐसा था तो अब मैं अपने अटैचमेंट स्टाइल को कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, कैसे हील कर सकती हूँ, राइट. दैट इज वेयर आई कम इन, राइट. आई विल हेल्प यू आउट विद योर अटैचमेंट स्टाइल. ठीक है, because sometimes we are not able to ask ourselves the kind of questions that a therapist can ask, and that questions can be really really therapeutic, can be really really healing. Obviously these techniques that I gave इससे पहले कि हाँ ये आपको अवेयर होने में थोड़ा हेल्प करेंगे. That obviously don't ensure कि these questions are just for you. Sometimes that needs to be customized according to your own needs. You can book one-to-one session. The link is in the description, and also don't forget to subscribe to my channel because I post these videos regularly. So bye bye, take care of yourself.